Hey everyone, welcome again in chapter Nutrition in Animals. See one thing, before watching this video, please watch my previous video to make your basics clear. Because if your basics will be clear, then only you will be able to understand this video, this presentation in a better way or in a proper way. Okay, let us start. I have told you about nutrition, what is nutrition, and I have told you about the steps involved in the nutrition. Now I'll told you the broad spectrum of nutrition, the mechanism of nutrition, that how our organs are performing this task we are studying. Okay, the first thing was ingestion. Ingestion means to take the food in mouth. अब होता क्या है? When you take food in mouth, आप क्या करते हो? You chew the food from your teeth. Your teeth helps in chewing. And your saliva. What is saliva? कुछ लोग saliva को लार भी कहते हैं. Your saliva mixes with your food and it helps in breaking the food with the help of teeth. होता है ना कि आपने कुछ भी मुंह में डाला, कुछ आपने फूड चपाती ली तो वो चपाती को वेट कर देता है सलाइवा, उसको गीला कर देता है एंड देन यू कैन इजीली च्यू इट. ओके, एक और चीज, जो आपका सलाइवा होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? salivary glands से निकलता है. The saliva are produced by the salivary glands. And what are salivary glands? Salivary glands are present here in the mouth, in the neck area or somewhere like that. And we have around 3 salivary glands. How many glands we have? We have 3 salivary glands. And most important thing, आपको पता है digestion starts in the mouth. Yes, people will say no ma'am, digestion तो stomach में start होता है. It is not true. Digestion starts in the mouth only. What is digestion? Breakdown of food, and breakdown starts in the mouth only. And one more thing, mouth में जो starch है, the starch वो sugar में convert होता है. Your saliva, there is an enzyme present in your saliva, that is amylase. That is not of your class 7, but just for the knowledge I'm telling you, there is an enzyme, its name is amylase. And this is present in saliva. And ये क्या करता है? आपके starch को sugar में convert करता है. Now you can say कि मैम फायदा क्या है? What is the use? Starch को starch ही रहने दो. Actually starch थोड़ा सा complex होता है. तो उसको enzyme और sugar थोड़ा सा simple होता है. शुगर का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च है. ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज ब्रेक करनी है तो आप उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो वो हमारा क्या कर रहा है? सलाइवा कर रहा है. सो दिस वाज अबाउट माउथ. सो व्हाट हैपेंस, आई एम टेलिंग यू अगेन, व्हेन वी टेक इन फूड, द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा. Saliva is produced by salivary glands and then we chew the food with the help of teeth. And in the mouth only, the starch gets converted into the sugar. So हमने क्या क्या देखा? First thing is saliva mixes with the food. कहाँ से आता है saliva? Salivary glands, salivary glands. And how many we have? We have 3. Second step in mouth is chewing. We chew our food. Third step is, what is third step? Starch converts into sugar. That's it. So these are the 3 steps involved in the mouth. First thing, digestion begin in the mouth only. And how does it take place? These are the steps. Okay, shall I proceed? Okay, one thing I want to say that mouth में से खाना जो है it will go to stomach. But कैसे जाएगा? यहाँ से कोई रास्ता है? खाना गिर जाएगा अंदर जाके? There is a food pipe. Yes, आपके mouth से यहाँ से there is a food pipe going which is attached to your stomach, and the name of the food pipe is esophagus. Food pipe is also known as esophagus. Whatever you eat, it travels through the esophagus and goes to the stomach. So what is esophagus? Esophagus is like a path. It is like a bridge जो आपके खाने को नीचे पहुंचा रहा है. अच्छा, one thing I want to tell you about esophagus.
कभी कभी आप बहुत बड़े बड़े बाइट्स खा लेते हो, है ना, और वो फंस जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दम लगाओगे, थोड़ा सा पुश करोगे, थोड़ा वर्क हार्ड करोगे, इट विल गो डाउन. This is known as peristaltic movement. This is known as peristaltic movement. See, this is our esophagus. Can you see this? And you can see यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है, फिर पतला हो रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है. This is known as peristaltic movement. देखो esophagus सपोज इतना पतला है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ऐसे 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 करता है और वो खाने को पुश करता है नीचे की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्नेक को देखा होगा, कभी स्नेक की वीडियो देखना आप डिस्कवरी चैनल पे या कहाँ पे, जब स्नेक खाना खाता है अपने से बड़े जानवरों को स्नेक खा लेता है, तो वो क्या करता है, फिर अपनी जो बॉडी है उसको ऐसे दबाता है, फिर छोड़ता है, फिर दबाता है, पुश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और वो धक्का खाते खाते जो आपका फूड है वो स्टमक तक पहुंच जाता है. दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. एंड ईसोफेगस ऐसे मसल्स का बना होता है जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अलाउ करता है. सो इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, peristaltic movement, in this movement the esophagus contracts, expands to push the food to the stomach. I think it is clear to you guys. Now we have come to stomach. हम stomach में आ गए. जैसे ही आपका खाना स्टमक में आता है, आपके स्टमक में से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलने शुरू हो जाते हैं, which are acids. Yes, एसिड्स आपके स्टमक में से रिलीज होते हैं, और वो एसिड भी इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि जो एक रेजर होता है ना, ब्लेड होता है, जो ब्लेड जो रेजर आपने देखा होगा, उसको भी गला सकता है अपने अंदर. यस, देन द क्वेश्चन अराइजेस कि जब वो ब्लेड को गला सकता है तो हमारे स्टमक को क्यों नहीं गलाता? क्योंकि हमारे स्टमक के आसपास एक म्यूकस लेयर बनी होती है. म्यूकस, इट इज अ म्यूकस लेयर. म्यूकस लेयर जो है वो हमारी स्टमक को गलने से, एसिड के अटैक से प्रिवेंट करती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट थिंग हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे ही हमारा फूड स्टमक में पहुंचा, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हुए. डाइजेस्टिव जूसेस, और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, उसको हमारे फूड को वो गलाते हैं, उसको और ब्रेक करते हैं, ठीक है. एंड द नेम ऑफ द एसिड इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. इसका एक और फंक्शन है, ये जो जूसेस है ना, एक तो फंक्शन है कि वो हमारे खाने को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं. सेकेंड फंक्शन ये है, देखो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे फॉरेन बॉडीज़ हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो इट इज़ एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, और उस खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया सपोज आ जाता है तो हमारी बॉडी में जाता है, तो जैसे ही वो स्टमक में पहुंचता है तो इतने सारे एसिड्स के प्रकोप में आगे वो चल जाता है, ख़त्म हो जाता है. सो द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज टू डिकम्पोज फूड and what else, to destroy or to kill foreign bacteria. okay, उसके बाद क्या होता है, आपका जो स्टमक है वो चर्निंग स्टार्ट करता है. व्हाट इज चर्निंग? आपका स्टमक इतनी जोर से उछल कूद करेगा, हिलेगा डुलेगा, ताकि जो भी आपका खाना था वो एकदम मिक्स हो जाए. दिस इज नोन एज चर्निंग. Your stomach starts vibrating, your stomach starts moving rapidly, बहुत जल्दी, and this is जो आपका फूड बनता है, उस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं, वो जो मिक्स होके आ जाता है ना, इस प्रोसेस को नोन एज चर्निंग. सो दिस इज अबाउट स्टमक. अच्छा, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी पहले वीडियो में कि देयर वाज अ गाय हु वाज शॉट बाय द गन, तो उसके स्टमक में एक होल हो गया था, एक छेद हो गया था. तो वो बंदा गया डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल गया वो बंदा. फिर क्या हुआ, अब डॉक्टर ने कहा यार इसका इलाज तो मैं कर देता हूँ, लेकिन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये पता कर सकता हूँ कि हमारे स्टमक में क्या है. तो वो बंदा क्या करता था कि डॉक्टर क्या करता था कि उस बंदे पे एक्सपेरिमेंट्स करता था. उसने एक स्ट्रिंग में फूड बांधा, फूड को उसके अंदर डाला, जैसे ही फूड वहाँ पहुँचा डाइजेस्टिव जूसेस निकलने शुरू हो गए. तो ही वॉज वेरी अमेज्ड. तो उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया कि हमारी बॉडी में एक्चुअली क्या हो रहा है. सी,
हाउ फनी इट इज ना। एक बेचारा बंदा, वो बेचारा घायल है, उसके पेट में एक गोली लगी है, पेट में छेद हो रखा है, डॉक्टर क्या कर रहा है, अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहा है। चलो कुछ ना कुछ दिया होगा उस बंदे को कि भैया करवा ले। खैर, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, स्टमक के बाद जो आपका फूड है इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। वेयर इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। इससे पहले एक चीज बताती हूँ मैं, आपकी लेंथ कितनी होगी, आपकी हाइट कितनी होगी, 5 4 5 5 5 6, कितना मीटर है ये, 1 मीटर भी नहीं है, ये 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर भी नहीं है। जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ है 7 मीटर्स। जस्ट इमेजिन, आपकी छोटी सी बॉडी में 7 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन है। सी, दिस इज द मिरेकल, दिस इज द वंडर ऑफ गॉड। ओके, फिर क्या होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है तो वी हैव लिवर अटैच्ड टू द, can you see the liver here, this liver, this is your stomach, this thing, stomach is J shaped, this is your stomach, ठीक है, and this is your liver। ठीक है, अब क्या होता है जैसे ही फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, दिस, ये जो अंदर ये जो है ना, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस ये जो अंदर पिंक पिंक पोर्शन है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लिवर एक जूस सिक्रेट करता है, उसका नाम है बाइल जूस, दैट इज नोन एज बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अगर आपका शौक है पतले रहना तो ये जरूर, if you want to maintain your body, if you want to look good and if you want to look slim, तो ये जरूर सुनो। लिवर जो है that is responsible for the decomposition of fat। yes, फैट को ब्रेक करता है लिवर। कुछ कहते हैं ना कि यार तू कितना खाता है, पतला है लेकिन मोटा नहीं होता, क्योंकि उसका लिवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो व्हाट लिवर डज, लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है which is responsible for the breakdown of fat। okay, then we have पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रियास कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस इज पैनक्रियास, छोटू सा स्टमक के छोटू सा पैनक्रियास, देखो दिस वन इज पैनक्रियास, छोटा सा। तो ये जो पैनक्रियास है ये भी एक जूस सिक्रेट करता है। वो जूस क्या करता है, वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। लिवर ने क्या किया, फैट के डाइजेशन में हेल्प करा, और पैनक्रियास ने क्या किया, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प किया। देखो प्रोटीन का पैनक्रियास का एक और फंक्शन है, बट सबसे मेजर फंक्शन वो देखो। आप एक बात बताओ, मैंने आपको बोला स्टमक में है एसिड्स, एसिड रिलीज होते हैं स्टमक में। चलो स्टमक में हमारा नहीं जल रहा बिकॉज म्यूकस लेयर, लेकिन क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस लेयर है? अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो जल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैनक्रियास जो जूस छोड़ता है, जो जूस सिक्रेट करता है, वो एसिडिक नहीं होता, वो एल्कलाइन होता है, और वो एसिड से मिक्स करके उसको एसिडिटी खत्म कर देता है, एसिडिक नेचर खत्म कर देता है और एल्कलाइन बना देता है। तो इससे आपका जो आपका इंटेस्टाइन है वो नहीं डिस्ट्रॉय होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू गाइस, लेट मी क्लियर इट अगेन। आपका जो फूड होता है वो एसिडिक होता है स्टमक में, जैसे ही वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से पैनक्रियास एक अटैच होता है, वो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, वो पैनक्रियाटिक जूस उस एसिडिक फूड से मिक्स होता है और क्या करता है, उसको एल्कलाइन बना देता है। एल्कलाइन वी कैन से बेसिक बना देता है, बेसिक नेचर का। आई होप इट इज क्लियर। अब उसके बाद क्या है, हमने देखा माउथ, देन वी स्टडी अबाउट स्टमक, देन वी स्टडी अबाउट लिवर, पैनक्रियास। अब जब वो इंटेस्टाइन में जाता है, अब सब डाइजेशन खत्म हो गया है, अब होगा एब्जॉर्प्शन। यस, इंटेस्टाइन से जाके जो आपका फूड है वो ब्लड में मिल जाता है। यस, फ्रॉम इंटेस्टाइन फूड गोज टू द ब्लड, या और फिर ब्लड से वो सेल्स तक पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि जो आपका बचा कुचा जिसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल चुके हैं सारे, और जो वेस्ट बचा है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यू कैन से दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन,
दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी आपका फूड है, वेस्ट फूड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन सारा का सारा उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है. यस. और उसके बाद जो भी बचता है उसको वो यहाँ से रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर. दैट्स इट. सो सिंपल इट इज. तभी तो कहते हैं कि जिसका पेट अच्छा है वो इंसान निरोगी है. Why I'm saying so? Suppose, I mean, just for the knowledge I'm sharing with this guys. आप अगर वॉशरूम नहीं, you are not going washroom properly, you are holding it, then what will happen? लार्ज इंटेस्टाइन बार बार उसमें से वाटर लेता रहेगा. ओ पड़ा पड़ा सब कुछ सड़ जाता है बॉडी में, और वो सड़ा हुआ पानी ले रहा है जो कि बॉडी में यूज हो रहा है. तो दिस विल depreciate your health. तो make this sure to you. Okay, again I'm telling you this whole process how it's done. देखो, माउथ से हमने खाना खाया, दिस इज माउथ, और हमने खाना अंदर लिया. ठीक है. यहाँ पे ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं. ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा बनाते हैं, और जो हमारा टीथ है, हमारा सलाइवा है, वो मिक्स होके हमारे फूड को क्या करता है, थोड़ा सा डाइजेशन में हेल्प करता है, च्यू करता है. देन यहाँ से ईसोफेगस, दिस इज फूड पाइप, यहाँ से खाना नीचे आता है और स्टमक में जाता है. दिस इज स्टमक. स्टमक में गया, जैसे स्टमक में गया, स्टमक में से डाइजेस्टिव जूसेस निकले. वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या कर रहे हैं, उस खाने को डिकम्पोज कर रहे हैं, और स्टमक चर्न करता है, बहुत जोर से वाइब्रेट करता है, हिलता है, खाना मिक्स हो जाए, ओ डिकम्पोज हो. उसके बाद यहाँ से गया पैंक्रियाज में, दिस पैंक्रियाज. जैसे ही पैंक्रियाज में पहुंचने वाला होता है तभी हमारा लिवर बाइल जूस सेक्रेट करता है, और हमारा पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है. बाइल जूस फैट को डिकम्पोज करता है, और पैंक्रियाज प्रोटीन को डिकम्पोज करता है, और पैंक्रियाज जो है वो एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है. जो भी आपका एसिडिक फूड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कलाइन फूड में. सो देन लार्ज इंटेस्टाइन में जो आता है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन उस वेस्ट में से पानी खींच लेता है, वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. देन बाहर, कहाँ से बाहर, रेक्टम और एनस से बाहर. एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ इट, बिकॉज एग्जाम में आता है. ओके. सो एक इंफॉर्मेशन क्या चीज बतानी है आपको. जैसे जब आप हड़बड़ी में खाना खा लेते हो तो आप गला चौक हो जाता है. आई मीन यू फील लाइक कफिंग, आप खांसी करते हो बहुत जोर जोर से. इट इज बाय डिफॉल्ट. ये अगर आप खांसी नहीं करोगे, अगर आपको खांसी नहीं आएगी, इफ यू नॉट कफ, तो वो खाना आपके गले से फूड पाइप में विंड पाइप में चला जाएगा. विंड पाइप जहाँ से आप सांस लेते हो, और वहां पे अटक जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, एंड यू विल समझ जाओ क्या होगा. सो दिस इज द थिंग. एक और चीज बताती हूँ मैं आपको. जब आप खाना खाते हैं तो आपके जो ईसोफेगस है, दैट इज फूड पाइप एंड विंड पाइप, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक ही ओपनिंग शेयर करते हैं. होल एक ही होता है, और उस एक होल से दोनों निकल रहे होते हैं. तो एक क्वेश्चन था, बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम फिर विंड पाइप में खाना क्यों नहीं जाता. यू नो व्हाट हैपन, जैसे ही हमने मुंह में कुछ डाला, हमारे यहाँ पे एक शटर होता है. फूड पाइप और विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है ना, वहां पे एक शटर होता है. ठीक है. जैसे मैं आपको ड्रॉ कर दिखाती हूँ, जस्ट लाइक दिस. सपोज दिस इज योर फूड पाइप, ठीक है, एंड दिस इज योर विंड पाइप. अब देखो दोनों की ओपनिंग सेम है, खाना तो यहां भी जा सकता है ना. सपोज दिस इज फूड पाइप एंड दिस इज विंड पाइप. अब खाना हमने खाया, खाना अगर यहाँ जाता है तो जैसे ही हम खाना मुंह में डालते हैं तो यहाँ पे एक शटर होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस. इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस. जैसे ही खाना मुंह में जाता है ये बंद कर देता है शटर खुद को. दिस इज द फिनोमिनन कि हमारे विंड पाइप में खाना क्यों नहीं जाता. आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस. अब एक बार रिविजन और करवा देती हूँ मैं आपको. First we take food in our mouth, then the food gets mixed with the saliva, then we chew the food, then the starch get converted into the sugar, and the digestion starts in the mouth. From the mouth, our food goes to esophagus, food pipe. From the food pipe goes to the stomach. In the stomach, digestive juices are released,
which decompose our food. Yes, and the stomach just starts churning. After it, the food goes to intestine. Then liver secretes bile juice, which helps in the decomposition of fat, and pancreas secretes pancreatic juice, which provides an alkaline medium to the food, and it breaks down the proteins. And from then it goes to the large intestine. In the large intestine extracts or absorbs all the water from the waste food, and then it goes to rectum and then anus and out. So I hope it is clear to you guys. If you have any query, if you have any doubt about this chapter, then you can ask me. You can ask in the comment box. I will definitely try to rectify it, and any suggestion are always welcome. So for more upcoming videos, subscribe my channel, keep watching my videos. If you like it, then do like it and share with your friends too. Chaliye, bye bye, take care.